ये सवाल आप अपना लीडर से पूछो, कहां गया ये पैसा? महाराजा खाया वो पैसा नहीं, पैसा आया है। ये सच है। मैं अपना बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, आपको दिल का बात बोल रहा है। 720 करोड़ आया है, कहां गया? ये घर आप मैं देख रहा हूं, ये घर है, यहां में तोई का प्रॉब्लम है, तो वो पैसा कहां गया? आप लोग मेमोरेंडम दे रहा है, किसको दे रहा है? आप लोग भी समझो। मैंने शुरू में बोला था, आई लव माई रियंग पीपल, बट सम रियंग लीडर्स डोंट लव देयर रियंग पीपल। यही प्रॉब्लम है। I am one of the signatory to tripartite agreement signed on 16 January 2020 in New Delhi, along with the Union Home Minister and Honorable Chief Minister of Biplab Debji and other dignitaries in Tripura's NGO. First and foremost, I would like to convey word of thanks to Union Home Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Union Home Minister Shri Amit Shah ji and Honorable ex-Chief Minister of Biplab Debji and present Chief Minister of Honorable Dr. Manik Shah ji for supporting the Bruce settlement. Today, we just gathered here to give some brief clarification in connection with the Bubagra, what he has been delivered his speech during his maiden visit in Naisingpara, Kumarghat and Damchera. He has been mentioned that 720 crore has been misused by the blue leaders, and he has been raising a question by himself and asking the people to understand and creating misunderstanding among ourselves. So there are a lot of confusion has been arised by the public as well as the common people. So in this connection, we just want to give the clarification that 720 crore has not been given to the Bru leader in order for the implementation of the Bru settlement. This implementation funding system is being directly implemented by the central government. House building assistance, fixed deposit and monthly cash assistance is directly credited through the central government. So every household, every each and family is being received through online system only, online transaction only. So no leader has been distributed cash in hand to any family. So on that day, Bubagra is blundering that the Bru leader, which is sanctioned 720 crore, is being misused and distort that money. So that was totally fact, and we really wonder why he has been mentioned such type of things. So we cannot understand. So with respect to this, we want to clarify that we, the Bru leader, signatory, are not actually happy about what he has been made a statement during his speech delivered in the Naisingpara and Kumarghat and Haduklau as well. So we want to clarify that no fund is being directly given to the Bru leader. It is given by the central government, and house building assistance and monthly cash assistance and fixed deposit is directly credited from the central government only. And for the toilet construction is directly credited from the block development officer only. So there is no any fund given to the Bru leader, and there is no fund is placed for the Bru leader in order to distribute to the publicly. So there is no any connection with what he has made a statement during his maiden visit in Kumarghat, Naisingpara and Damchera. So this is totally wrong, and we are unable to understand what he has been mentioned. And this is we believe that this is a political dialogue, so we cannot accept this. So kindly make correction in this connection, so that this type of political behavior should not be carried out again and again in the future coming
future days and coming days, for the coming days. And thank you so much, and thank you for this time. And I would like to give all the viewers to understand what we are meant to say and what is happening in the Blue Settlement. So the Bu Bagra might not able to know how this implementing is being done in the Blue Settlement. After the agreement, yesterday is the first time he has been visited to the Naisingpara, so he might not be understand what is the happening in the Blue Settlement and what the leaders are been working and what type of the government is being undertaken regarding the Blue Settlement. He might not have much knowledge about that one. That's why he has been slip his tongue. So that might be some not reasonable point. So kindly make correction and try to correct by himself, and he will take back his word, what he has been mentioned on those days. Thank you very much. नमस्कार, मैं विपिन कुमार रियांग ब्रू ट्राइब डेवलपमेंट सोसाइटी के वर्तमान में प्रेसिडेंट पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ। आज 22 अप्रैल 2024 को सेटलमेंट लोकेशन अलग अलग जगह से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने बैठक किया, और बैठक के बाद सोशल मीडिया के थ्रू एक दो बातें जो हमें लगा कि बोलना चाहिए, इसलिए हमें सोशल मीडिया में आना पड़ा। जैसा कि सभी को पता है कि 1997 को मिजोरम से कई अराउंड 35,000 पॉपुलेशन वहाँ से हमें डिस्प्लेस होकर त्रिपुरा में आना पड़ा। आफ्टर 23 ईयर्स के बाद अपने केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार बना, उसके बाद हम लोग को त्रिपुरा में परमानेंटली सेटलमेंट करने की एक एग्रीमेंट 16 जनवरी 2020 को साइन हुआ। इस एग्रीमेंट को सफल बनाने के लिए अपने त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव जी, इन्होंने अपने यथा परिश्रम करके एक इस नतीजे पर अभी लाया है, जो अपने केंद्र में अपना गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा अपने त्रिपुरा में परमानेंटली सेटलमेंट करने का जो काम अभी चल रहा है, इसके लिए अपने पूरे ब्रू डिस्प्लेस पीपल की ओर से मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सेटलमेंट का काम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो गया है। हम इस बात के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम इतने कठिन परिस्थिति में रिलीफ कैंप में रहने के बाद अभी हम लोग को एक नया जीवन मिला है। तो एक बात, सोशल मीडिया के थ्रू इतने अच्छे काम होते हुए भी हमें एक बार जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें जो क्लियरिफिकेशन के लिए हमें आना पड़ा, वो बात यह है कि 20 तारीख को हादुक्लाव रिसेटलमेंट लोकेशन में बु बाग्रा, जिनको त्रिपुरा में इस तरह से संबोधित किया जाता है, महाराजा प्रदीप किशोर देववर्मा जी, और उन्होंने आकर जो बातें कही, फिर उसके बाद नाइसिंगपारा में 21 तारीख अप्रैल 2024 को उन्होंने जो बातें आगे कहा था, धामछड़ा में 21 तारीख अप्रैल 2024 को जो उन्होंने आगे अपने कमेटी के ऊपर, अपने ब्रू लीडर्स के ऊपर जो उन्होंने बोला था, उस बात को मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि सेटलमेंट के लिए 600 करोड़ रुपए और उसके बाद 120 करोड़ रुपए मैं लेके आया हूँ, टोटल 720 करोड़ रुपए। अब पब्लिक से उन्होंने आके पूछा, इतने सारे पैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ला के यहाँ पर आप लोग की सेटलमेंट के लिए मैंने इतना काम किया, आप लोग को कुछ मिला है क्या? ऐसा पब्लिक के सामने उन्होंने प्रश्न किया। तो कुछ पब्लिक को हिंदी
कुछ लोग को समझ में आता है, कुछ लोग को नहीं आता है। तो पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने सीधा बोला कि आप लोगों को कुछ नहीं मिला। इस बात को मैं थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जो 720 करोड़ रुपए जो फंड ब्रू रिसेटलमेंट के लिए उन्होंने जो दिया है, वो अपने एग्रीमेंट में पूरा क्लियर लिखा हुआ है। जो भी बेनिफिट है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू हर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पर्सनली दिया जाएगा। इस तरह से पूरा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत हर परिवार को 1.5 लाख रुपए और हर परिवार को 4 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और हर परिवार को 5,000 रुपए प्रति माह 2 साल के लिए और 2 साल के लिए राशन के। इस तरह से बेनिफिशियरी को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू दिया जाना है। तो हमें सभी पता है आज के डिजिटल एज के समय कोई भी पैसा कैश इन हैंड नहीं दिया जाता। तो इसके लिए ऑफिशियल प्रोसेस है। इसके लिए अगर उनको लगता है कि ये लीडर और गवर्नमेंट के मिली भगत से ये पैसा खत्म हो गया, तो वो सेटलमेंट लोकेशन में आके विजिट करे और गांव में घूमे। पहले की अपनी स्थिति कैसा था, पहले अपने पास घर नहीं था, अभी सेटलमेंट के बाद सभी जगह रोड बन गया, घर बन गया, पानी पहुंच गया है, बिजली पहुंच गया है। हम बहुत खुश हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इतने काम होने के बावजूद आप लोगों को कुछ नहीं मिला। इस तरह से पब्लिक को आके इंस्टिगेट करेंगे तो अपने लोग, अपने ब्रू कमिटी अधिकतर इतना पढ़े लिखे लोग नहीं है हम लोग, इससे अपने लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए मेरा ये आज सोशल मीडिया के थ्रू इतना ही कहना है कि जो भी फंडिंग है वो अपने लीडर से जाके पूछो, कहा गया। इस तरह से जो उन्होंने पब्लिक के सामने जो बोला है वो लीडर के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस बात को मैं सोशल मीडिया के थ्रू समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात कि अपने ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल को भारतीय जनता पार्टी स्टेट में और सेंट्रल में जब बना तभी हम लोग को सेटलमेंट मिला, तभी हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन मिला है। इसलिए